Good evening, everyone. Welcome to today's current affairs session. Let's begin with the session and let's have a look at the important current events. First important news, as usual, from the past few days, we are looking at this news that Mr. Modi has been conferred with many highest civilian awards of different countries because he is on tour of 5 different nations. So this is the latest news. Just give me one minute. This is the latest news that PM Modi conferred with Namibia's highest civilian award. So please note down the name of Namibia's highest civilian award. This is the picture you can see here, and Namibia's highest civilian award. Please note down the name. Namibia's highest civilian award is the Order of the Most Ancient Welwitschia Mirabilis. Please note down the name. The Order of the Most Ancient Welwitschia Mirabilis. The award was presented by Namibian President Netumbo Nandi. That's it. Please note down the name of the president also, Namibia's. Now, why this highest civilian order of Namibia is named after this unique ancient desert plant. तो ये डेजर्ट प्लांट है नामीबिया के अंदर होता है, इसलिए उस डेजर्ट प्लांट का नाम ये है जो मिराबिलिस आप पढ़ रहे हैं। ये एक प्लांट के ऊपर नेम इसका बेस्ड है। named after the Welwitschia mirabilis, a unique and ancient desert plant endemic to Namibia. मतलब यहीं पे पाया जाता है, ये कहीं और नहीं पाया जाता है, endemic है। endemic means वही उसी रीजन में पाया जाता है। The order symbolizes, तो इससे मतलब ये किसी को अगर हम अवार्ड देते हैं तो क्या सिंबलाइजेस होता है बेसिकली? रेजिलियंस, क्योंकि ये टॉलरेट करता है हाई डिग्री ऑफ टेम्परेचर एंड ऑल दैट, रेजिलियंस, लॉन्जिविटी एंड एंड्योरिंग स्पिरिट ऑफ नामीबियन पीपल। The award was established in 1995, shortly after Namibia gained independence in 1990, to recognize distinguished service and leadership. So please note down the year when it was established. It was established in 1995. PM Modi was in Namibia on the last leg of his 5 nation visit. तो आपको पता है वो अर्जेंटीना गए, ट्रिनिडाड एंड टबैगो, घाना एंड कौन सा, ब्राजील। यस, ब्रिक्स समिट के लिए ब्राजील। 5 नेशंस विजिट पे कहाँ कहाँ गए हैं? तो सबसे पहले कहाँ गए थे? घाना। नंबर 2 पे ट्रिनिडाड एंड टबैगो, देन अर्जेंटीना, then Brazil for the 17th BRICS summit, Brazil, and last is Namibia. तो घाना ने भी दिया है हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, ट्रिनिडाड टबैगो ने भी दिया है, एंड नामीबिया ने भी दिया है, और ब्राजील ने भी दिया है, अर्जेंटीना ने भी दिया है। आई डोंट नो व्हाई। दिस इज हिज फर्स्ट विजिट टू नामीबिया। मिस्टर मोदी की पहली विजिट है, बट थर्ड एवर विजिट, प्राइम मिनिस्टर विजिट फ्रॉम इंडिया टू द कंट्री। तो ये थर्ड विजिट, वैसे हमारे जो पुराने प्राइम मिनिस्टर वो गए थे, बट मिस्टर मोदी की ये फर्स्ट है। Now, strengthening India-Namibia bilateral relations. Mr. Modi and President discussed on furthering bilateral relations, including areas defense, maritime security, and all that. MOUs were signed also. The important news that you need to note down is that Namibia has joined Coalition for Disaster Resilient Infrastructure CDRI and Global Biofuel Alliance. So yesterday I think we did this news. Global Biofuel Alliance. कौन सी कंट्री ने ज्वाइन किया था? Which country? ट्रिनिडाड एंड टबैगो। इतनी वीक मेमोरी, कल ही तो किया था अभी हमने। ट्रिनिडाड एंड टबैगो ने ज्वाइन किया था ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, हमने डिस्कस भी किया था। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को ये बायोफ्यूल्स होते हैं। ये कौन से फ्यूल्स होते हैं? बायोफ्यूल्स जो क्रॉप से बनते हैं या क्रॉप वेस्ट से बनते हैं, एग्रीकल्चर वेस्ट से बनते हैं, वो बायोफ्यूल्स। तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस वी हैव कवर्ड yesterday, so you can add in that news in your notebook that
which is the latest country to join the Global Biofuel Alliance. So Trinidad and Tobago. After that, it is the Namibia. Namibia also joined Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, CDRI. Second important thing that you need to note down is Namibia became the first country globally to sign licensing agreement to adopt UPI technology. तो लाइसेंस एग्रीमेंट साइन करा नामीबिया ने, फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अडॉप्ट यूपीआई टेक्नोलॉजी. We have seen few days back that Mr. Modi also addressed the joint sitting of Parliament of Trinidad and Tobago, and you can look here at the invitation of the Speaker of the National Assembly. Mr. Modi addressed the Parliament of Namibia also. तो नामीबिया की पार्लियामेंट को भी एड्रेस किया है इन्होंने, वहां पर जाकर भी इन्होंने स्पीच दी है. एंड नाउ वी विल सी व्हाट इज सीडीआरआई. इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपने नोट डाउन कर लिए. तो यू माइट बी वंडरिंग सर व्हाट इज सीडीआरआई. ठीक है ना, कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर. और ये रिसेंटली अभी न्यूज में भी थी ये ऑर्गेनाइजेशन. सीडीआरआई इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये. लेट्स सी व्हाट इज सीडीआरआई. The Coalition for Disaster Resilience Infrastructure is a global partnership and it is led by India. तो जैसे ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस इनिशिएटिव किसने स्टार्ट किया था? इंडिया ने. इंटरनेशनल सोलर अलायंस किसने स्टार्ट किया था? इंडिया ने. सिमिलरली सीडीआरआई इनिशिएटिव इज लेड बाय इंडिया. It brings together government of different countries, United Nations agencies, development banks, private companies, scientists and researchers. ये करेंगे क्या? These groups work together to make sure that infrastructure like road, bridges, power plants, hospital is strong enough to survive natural disasters such as floods, earthquakes, cyclones, climate change effects. इसका नेम ही आप देख सकते हैं, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर. डिजास्टर का उस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कोई इंपैक्ट ना हो, वो उसको विथस्टैंड कर ले, फ्लड्स को विथस्टैंड कर ले. बिकॉज क्लाइमेट चेंज के कारण वी आर विटनेसिंग increase in the disasters, in the intensity also and in the frequency also. frequency means बार बार हो रहे हैं, intensity मतलब ज्यादा broader कह सकते हो आप स्केल पे हो रहे हैं, ज्यादा उनका इम्पैक्ट हो रहा है. तो ये सीडीआरआई जो है ये एक ऐसा इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्क करेगी ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए जो डिजास्टर रेजिलिएंट हो, जिसको नामीबिया ने अभी क्या कर लिया है? ज्वाइन कर लिया है. Why CDRI is important? We are seeing more disasters. तो मैंने आपको बोला कि फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो रही है because of climate change like rising sea levels, heat waves, storms. If road, bridges, buildings and power supplies are not built to handle such disasters, तो आप देखते हैं जब साइक्लोन आता है तो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रप्शन हो जाती है ना, सारे खंबे गिर जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पोल्स जो है वो गिर जाते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रप्शन हो गई. और बाकी कितनी सारी हमें देखते हैं ब्रिजेस कोलैप्स हो जाते हैं. अभी देखा हमने एक ब्रिज कोलैप्स हुआ है गुजरात के अंदर. पहले मोरबी ब्रिज कोलैप्स हुआ था गुजरात के अंदर 2 साल पहले. अब एक और ब्रिज हमने देखा कोलैप्स हुआ है. तो ब्रिजेस, बट ये किसी डिजास्टर की वजह से कोलैप्स नहीं हुआ, इसका ये तो कोई दूसरा ही डिजास्टर लग रहा है. ठीक है. Buildings and power supplies are not built to handle such disasters. Everything can break down and people's lives can be at risk. So CDI want to build smarter, safer, stronger infrastructure so that damage is reduced, lives are saved, economic losses are minimized, and development is sustainable. CDI origins and goals. तो आप नोट डाउन करिए कि CDRI जो है ये कब एस्टेब्लिश किया गया था? इट वाज लॉन्च इन 2019. किस इवेंट पे ये लॉन्च हुआ था? यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट इन न्यूयॉर्क. तो जब यूनाइटेड नेशन का क्लाइमेट एक्शन समिट हुआ था न्यूयॉर्क के अंदर 2019 में, एट दैट इवेंट दिस इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय इंडिया. CDRI led by the government of India. It is India's second major global climate initiative. Climate initiative second major, but global biofuel alliance भी climate initiative ही है एक तरह का. So after International Solar Alliance, this is the second major global climate initiative after the International Solar Alliance. गोल्स आपको पता चल चुके हैं. गोल्स क्या है? मेंबरशिप आप नोट डाउन कर सकते हैं. कितने कंट्रीज मेंबर हैं इसके? 47 मेंबर कंट्रीज इंक्लूडिंग ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, इसने भी ज्वाइन करा. ठीक है, सीडीआरआई को. एंड लेटेस्ट मेंबर इज नामीबिया. तो 47 मेंबर कंट्रीज हैं, 8 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसका मेंबर है. क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि इट इज
a group of basically countries and international organizations, private companies also. So 8 international organizations like World Bank, UNDP, Asian Development Bank. So total countries and organizations को अगर हम मिला लें तो 55 के अराउंड होते हैं. आपको याद करना है लेटेस्ट मेंबर कौन सी है, इसका स्टार्टिंग डेट याद रखनी है कब है. ये CDRI जो है ये कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करता है? ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस रिपोर्ट. ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? CDRI. Now, what are the other initiatives which have been launched under CDRI initiative? CDRI initiative के अंदर भी बहुत सारे initiatives launch किए गए हैं. तो उसमें से एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दो इंपॉर्टेंट है, दोनों को आप नोट डाउन कर लेना. इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट, तो IRIS, इसकी तो पहले IRIS की फुल फॉर्म नोट डाउन कर लो. इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स. तो जो आइलैंड स्टेट्स हैं, राइजिंग सी लेवल की वजह से सी लेवल बढ़ रहा है, एंड island states, they are more vulnerable to the different kind of disasters, climate change related disasters. So this initiative is particularly for small island developing states. Island states जो developing states हैं, small है, like Fiji, Maldives, Mauritius. So IRIS initiative is related with what? So you have to take the right answer. It is an infrastructure for resilient island states. Why island states? Because they are vulnerable to natural disasters like hurricane, floods, sea level rise. Often they lack money or technology because वो बहुत छोटे से देश होते हैं, उनके पास ना टेक्नोलॉजी है ना ही इतनी फंडिंग है. तो IRIS इनिशिएटिव हो गया. What IRIS does? It helps countries build disaster resilient infrastructure. Why? Because एक आइलैंड अगर कंट्री है तो वहां पर एयरपोर्ट तो एक ही होगा ना. इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, यहाँ पर मल्टीपल एयरपोर्ट्स हो सकते हैं. जो आइलैंड कंट्रीज है सिंगल एयरपोर्ट है. अब जैसे कोई डिजास्टर आया, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो गया, तो उनका जो कनेक्टिविटी टूट गई, कितना मेजर मतलब एक इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो गया, तो इसलिए उनको हेल्प करना जरूरी है. फोकसेस ऑन इंक्लूसिव डेवलपमेंट, मीनिंग इट बेनिफिट्स ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, एनकरेजेस सस्टेनेबिलिटी. व्हाई इट मैटर्स? तो बिकॉज दे आर एट हाईएस्ट क्लाइमेट रिस्क. देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज DRI कनेक्ट प्लेटफॉर्म. DRI कनेक्ट प्लेटफॉर्म जो है इसी का ही एक इनिशिएटिव है, CDRI का. DRI Connect platform क्या है? It is an online platform like a digital hub or website created by CDRI. It offers space for sharing knowledge, case studies and basically कि सारे researchers, scientists, engineers आकर बैठकर knowledge sharing platform है उनका DRI Connect. It is a knowledge sharing platform. So instead of each country working alone, DRI Connect makes it easy to connect all the people, all the basically scientists, all governments, engineers, so they can discuss together and ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी मतलब पॉलिसीज वो लेके आ सकते हैं जो हेल्पफुल हो. सो DRI कनेक्ट हो गया. अब लेटेस्ट जो है ये आप नोट डाउन करिए, CDRI मेजर इनिशिएटिव इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस. इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इसको आप नोट डाउन करिए. ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ICDRI. इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस मींस मीटिंग, किस चीज के ऊपर? डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर. ये रिसेंटली अभी हुई है फ्रांस के अंदर, और मोदी जी ने जाके इसको अटेंड किया है वहां पर. ठीक है. इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर. इट इज अ बिग एनुअल ग्लोबल कॉन्फ्रेंस. इट इज एन एनुअल कॉन्फ्रेंस एवरी ईयर. इट हैपेंस एंड इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय CDRI. कौन अटेंड करता है इसको जाके? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स, अर्बन प्लानर्स, ये सारे वहां अटेंड करते हैं. क्या करते हैं वहां जाकर? दे शेयर देयर एक्सपीरियंसेस, सक्सेस स्टोरीज एंड चैलेंजेस इन मेकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डिजास्टर प्रूफ. ठीक है. नाउ आप देखिए, ये तो करते हैं. इससे पहले हम एक ये आप नोट डाउन करिए, गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर. आई थिंक वो स्किप हो गया. आप ये नोट डाउन कर लो कि अभी रिसेंटली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलियंस ये फ्रांस के अंदर हुई है. ठीक है, वो स्किप हो गया. ठीक है, लिख लिया, फ्रांस के अंदर हुई है.
देन नेक्स्ट इज कि CDRI का अभी 5 इयर्स कंप्लीट हुए थे 2024 में, क्योंकि 2019 में स्टार्ट हुई थी, तो 2024 में कितने इयर्स कंप्लीट हुए थे? 5 इयर्स। अब 5th ईयर पे इन्होंने जाकर एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है इन्होंने ऑन इट्स 5th एनिवर्सरी। कौन सा इनिशिएटिव था? 2.5 मिलियन फंड, ठीक है, $2.5 मिलियन फंड अनाउंस किया है इन्होंने, और उस फंड का नाम है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलिएंट प्रोग्राम, UIRP। UIRP अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस प्रोग्राम, UIRP। ये क्या है UIRP? It helps cities become more climate resilient, meaning they can better handle floods, heat waves, storms, other disasters. फोकस ये आप नोट डाउन करो, UIRP का जो ये फंड है $2.5 मिलियन फंड, ये किसके ऊपर फोकस करेगा? ऑन 30 लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। इट improves urban planning, construction, disaster preparedness in cities. Why URP fund is important? UIRP fund is important because cities are growing fast. They are more vulnerable to climate related disasters. Many low income countries don't have the resources or technical knowledge to build resilient infrastructure. This fund will support technical assistance, training, research, planning, tools to build safer, greener and more sustainable cities. UIRP. Now CDRI का गवर्नेंस देख लेते हैं हम, ठीक है? कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का गवर्नेंस सिस्टम देख लेते हैं हम। और ये देखो यहाँ पर मेंशन कर भी दिया मैंने, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एड्रेस द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज्ड बाय कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर सीडीए हेल्ड ऑन June 6-7 इन नाइस इन फ्रांस। अब इसका गवर्नेंस स्ट्रक्चर आप देखिए, इसका एक सेक्रेटारिएट है, एग्जीक्यूटिव कमेटी है, गवर्निंग काउंसिल है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, CDRI का। इसका हेडक्वार्टर देख लिए न्यू दिल्ली इंडिया में है। CDRI हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली इंडिया। एंड इसको फंडिंग कहां से मिलती है फिर? इट इज फंडेड बाय वॉलंटरली कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम मेंबर कंट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस। तो वॉलंटरली कॉन्ट्रीब्यूशन है जो मेंबर कंट्रीज हैं वो करती हैं। इज दैट क्लियर? शैल आई मूव अहेड? सो मूविंग अहेड, तो ये फर्स्ट न्यूज हमारी खत्म हुई। नामीबिया हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, ठीक है, लेटेस्ट कंट्री टू ज्वाइन द CDRI ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। नेम ऑफ द अवार्ड and it is based on a plant, native plant which is endemic to Namibia. And name of the president, वो भी याद। next 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 important, ठीक है, next important news is Navy inducts first indigenous diving support vessel निस्तार। हम नेवी में हम देखते हैं कोई ना कोई नई शिप कुछ ना कुछ आता ही है, तो हमारी इंडियन नेवी काफी स्ट्रांग बन रही है। अब हमने क्या इंडक्ट किया है? खुद बनाई है इंडिजीनियसली। क्या बनाया है? इंडिजीनियस डाइविंग सपोर्ट वेसल विस्तार, डाइविंग सपोर्ट वेसल विस्तार, ठीक है जी। तो इसका एक डाइविंग सपोर्ट वेसल क्या है, पहले तो हम उसको ही देख लेते हैं। डाइविंग सपोर्ट वेसल आप देख सकते हैं, जैसे ये डाइविंग सपोर्ट वेसल है। डाइविंग सपोर्ट वेसल इज अ शिप डिजाइन टू हेल्प डाइवर्स वर्क सेफली डीप अंडर वाटर। तो अगर सबमरीन नीचे जो है वहां पर कोई लोग फंस गए, सबमरीन में फंस गए, रेस्क्यू ऑपरेशन करना है, तो हमें क्या चाहिए? डाइविंग सपोर्ट वेसल, ताकि जो डाइवर्स हैं वो नीचे जाएं, रेस्क्यू ऑपरेशन करें। सपोर्ट सबमरीन रेस्क्यू ऑपरेशन, ये डाइविंग सपोर्ट वेसल किसको सपोर्ट करती है? सबमरीन रेस्क्यू वेसल्स को, ऑपरेशंस को। कैरी स्पेशल इक्विपमेंट्स फॉर डीप सी टास्क। की रोल ऑफ निस्तार क्या रहेगा? ये एक सबमरीन रेस्क्यू मदरशिप है, सबमरीन रेस्क्यू मदरशिप। INS निस्तार विल एक्ट एज अ मदरशिप फॉर डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल। तो जैसे कि ये डाइविंग सपोर्ट वेसल, तो ये शिप है, इसके साथ एक जो सबमर्जेंस व्हीकल होगी वो नीचे जाएगी। ये नहीं नीचे जाएगी, ये उसको सपोर्ट करने के लिए है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए INS निस्तार विल एक्ट एज अ मदरशिप। किसके लिए मदरशिप एक्ट करेगी? फॉर डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल, रेस्क्यू व्हीकल नीचे जाएगी। A small submarine like machine that can go, तो ये DSRV, इसकी बात नहीं हो रही है, बात इसकी हो रही है जो हमने ये बनाई है। DSRV जो है ये एक सबमर्जेंस व्हीकल है जो नीचे अंडर वाटर जा सकती है, टू रेस्क्यू पीपल ट्रैप्ड इन डैमेज्ड सबमरीन। If a submarine gets stuck or damaged under water, then Nistar plus
DSRV together will locate the submarine, send divers down, rescue the crew, bring them back safely. तो ये इसका पर्पस है। इसका पर्पस आपको समझ में आ गया, तो अब आप नोट डाउन करिए। ठीक है, इसका नेम नोट डाउन कर लिया आपने। देन ये नेम ओरिजिनेट होता है संस्कृत नेम, इट मींस लिबरेशन, रेस्क्यू और सेल्वेशन। अच्छा, इट इज डिलीवर्ड बाय, किसने बनाई है ये? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड टू द इंडियन नेवी। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाई है, डिलीवर करी है इंडियन नेवी को। विस्तार, निस्तार, नॉट विस्तार, निस्तार मींस रेस्क्यू और सेल्वेशन, निस्तार। ठीक है, इसकी स्पेसिफिकेशंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 300 मीटर डेप्थ तक जा सकती है ये, एंड दैट्स इट। इसकी स्पेसिफिकेशंस हमारे काम की नहीं। ओके, मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट न्यूज। व्हाट इज द रोल ऑफ नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी? सेस्मोलॉजी का, नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी, ये किस, इसका रोल क्या है, ये कौन सी नोडल एजेंसी है, हमें ये चेक करना है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि ये न्यूज में क्यों थी। ये न्यूज में इसलिए थी क्योंकि एक अर्थक्वेक आया था 4.4 मैग्नीट्यूड ऑन रिक्टर स्केल नियर झज्जर इन हरियाणा, एंड ट्रेमर्स जो है दिल्ली एनसीआर रीजन में भी फील किए गए, झटके वहां पर भी आए थे। एपी सेंटर वॉज 3 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ झज्जर। एपी सेंटर कहाँ होता है? जहां पर सेंटर, जहां से अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ, एपी सेंटर। ठीक है, यहाँ पर ही आया, एंड रोहतक और ये गुरुग्राम यहाँ सब आए ये। तो ये अर्थक्वेक आने की वजह से अब हमें देखना है कि नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी, इसका क्या काम होता है, ये कौन सी नोडल एजेंसी है, किसके अंडर आती है। ठीक है, नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी, द हिस्ट्री ऑफ इंस्ट्रूमेंटल अर्थक्वेक मॉनिटरिंग इन इंडिया। तो भाई अर्थक्वेक को इंस्ट्रूमेंट से मॉनिटर करने के लिए हिस्ट्री कब से इंडिया में स्टार्ट हुआ था कि अर्थक्वेक को मॉनिटर स्टार्ट कर दिया था हमने? 1898 से। when the first seismological observatory of the country was established at, कहां पर हुई थी? अलीपुर, कलकत्ता, on December 1, 1898 after there was a earthquake, Shillong Plateau earthquake in 1897। तो फिर हमने earthquake को इंस्ट्रूमेंट से मेजर करना स्टार्ट कर दिया, उसका डेटा रखना स्टार्ट कर दिया हमने। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी तो आई थी जी हमारे पास 1898 में। नाउ नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी, it is a nodal agency of government of India for monitoring earthquake activity। so आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए which is the nodal agency in India to monitor earthquakes in India, ठीक है, मॉनिटर, तो आप आंसर देंगे नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी जो है, इसके बहुत सारे बेसिकली नेटवर्क स्टेशन है, 160 नेटवर्क स्टेशन है पूरे इंडिया में अलग अलग जगह पर, क्योंकि अर्थक्वेक तो कहीं भी आ सकता है। जहां पर इनके स्टेशन हैं वहां पर इनके पास स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट्स हैं, अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स हैं, ये अर्थक्वेक को जो है मॉनिटर कर सकते हैं अच्छे से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, दे कैन ऑल्सो मॉनिटर अर्थक्वेक स्वार्म। अर्थक्वेक स्वार्म क्या होता है? नहीं नहीं, ट्रेमर्स कह रहे हो आप, वो आप कह रहे हो आफ्टर शॉक कह रहे हो, अर्थक्वेक के आने के बाद, पहले तो कुछ नहीं आता, बाद आते हैं आफ्टर शॉक्स। जैसे एक अर्थक्वेक आया, मेजर अर्थक्वेक, उसके बाद छोटे छोटे झटके फिर मिलते हैं, आते हैं कि नहीं, उसको बोलते हैं आफ्टर शॉक्स। बट अर्थक्वेक आने से पहले कोई शॉक, फिर तो सबको ही पता चल जाए, सब बाहर ही आ जाए फिर तो। हाँ, ग्रुप स्वॉर्म से तो पता चल गया, स्वॉर्म ऑफ बीज है ना, ग्रुप ऑफ बीज। अर्थक्वेक स्वॉर्म मतलब ये ऐसा अर्थक्वेक होता है जिसमें कोई मेजर अर्थक्वेक तो नहीं आता, बट छोटी छोटी लोअर इंटेंसिटी के अर्थक्वेक आते हैं धीरे 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 करके। तो ये आफ्टर शॉक नहीं है, आफ्टर शॉक तो होता है बिगर अर्थक्वेक के बाद छोटे छोटे आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं। ये एक प्रॉपर अर्थक्वेक है, बट बहुत लो इंटेंसिटी का अर्थक्वेक है, और बहुत ग्रुप्स में आ रहा है, सेम इंटेंसिटी या ऑलमोस्ट सेम इंटेंसिटी से, तो इसको बोलते हैं अर्थक्वेक स्वॉर्म। ठीक है, अर्थक्वेक स्वॉर्म। What is an earthquake swarm? It is a series of many small earthquakes that occur in a specific area over a short period of time without one main shock। main shock earthquake इसमें कोई भी नहीं आता।
तो नॉर्मल अर्थक्वेक क्या होता है? वन लार्ज अर्थक्वेक फॉलोड बाय स्मॉलर वन, जिसको हम आफ्टर शॉक्स बोलते हैं। अर्थक्वेक फॉर्म है मेनी स्मॉल क्वेक्स ऑफ सिमिलर साइज। नाउ व्हाट आर सम टर्म्स रिलेटेड टू अर्थक्वेक? अर्थक्वेक तो सबसे पहले आपको पता ही है, इट इज अ सडन रैपिड शेकिंग ऑफ ग्राउंड कॉज्ड बाय द शिफ्टिंग ऑफ रॉक्स। टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट होती है, टेक्टोनिक प्लेट्स डिफरेंट प्लेट्स के ऊपर बेस्ड होते हैं कॉन्टिनेंट्स, और टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट्स जो है आपस में टकराती हैं या कुछ होता है सबसाइड कर जाती है, जिसकी वजह से प्रेशर बिल्ड होता है और क्या आता है? अर्थक्वेक आता है। ये तो ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा। तो अर्थक्वेक समझिए, व्हाट इज सेस्मोग्राफ? सेस्मोग्राफ क्या है? मेजर एंड इंटेंसिटी को मेजर करने, फिर रिचर स्केल क्या है? और सेस्मोग्राफ पे आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही है। सेस्मोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू डिटेक्ट एंड रिकॉर्ड अर्थक्वेक्स। तो जो ये डेटा देता है, इस डेटा को हम रिचर स्केल के ऊपर मेजर करते हैं कि कितनी इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आया है। ठीक है, आप नोट डाउन करिए कि ये रिचर स्केल जो है ये हमें इंटेंसिटी बताता है, और अर्थक्वेक कहाँ आया, कहाँ एपिसेंटर था, उसकी वेव्स कैसी थी, अलग अलग वेव्स भी होती हैं अर्थक्वेक की, तो वो हमें सेस्मोग्राफ से पता चलता है। रिचर स्केल बनाया किसने था? 1935 के अंदर चार्ल्स एफ रिचर ऑफ कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उन्होंने ये बनाया था। रिचर स्केल में कौन सा स्केल यूज होता है? रिचर स्केल तो है मतलब बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है, वो कौन सी यूज होती है वो भी हम देखते हैं। बट बिफोर दैट एक बार आप देखिए कि एपिसेंटर किसको बोलते हैं? एपिसेंटर इज द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ये सरफेस ऑफ द अर्थ ये है एपिसेंटर। बट नीचे आया होगा ना अर्थक्वेक, तो अर्थ के नीचे होगा ना उसके सेंटर, बट जहां से आया उसके ऊपर जो अर्थ का सरफेस है उसको हम क्या बोलते हैं? एपिसेंटर। बट जो नीचे होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फोकस। तो जैसे ये है अर्थ का सरफेस, नीचे यहाँ पर ये होगा अर्थ का सरफेस, और नीचे जाकर ये फोकस जहां पर भी आया होगा फोकस बोलते हैं, या उसको हाइपोसेंटर बोलते हैं। ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आ जाती हैं कि रिक्टर स्केल किसने बनाया था, एपिसेंटर किसको बोलते हैं, फोकस किसको बोलते हैं। तो फोकस उल्टा करा है अगर, कि फोकस ऊपर अर्थ के सरफेस पे होता है, वो नहीं, वो तो बीनीथ द अर्थ सरफेस होता है। आफ्टर शॉक मैंने आपको बता दिया, व्हाट इज आफ्टर शॉक। वहां से फर्स्ट बटन। अब आप देखिए रिचर स्केल के अंदर ना, आप इसको नोट डाउन करिए कि इट इज बेस्ड ऑन लोगारिथमिक स्केल। ये क्या है स्केल? ये कौन सा स्केल है? विच मीन्स ईच नंबर इज 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द प्रीवियस वन। ठीक है, तो रिचर स्केल क्या है? ये इसके ऊपर स्केल, इस स्केल के ऊपर बेस्ड होता है। इसका मतलब ये है कि सपोज मैग्नीट्यूड 6 अर्थक्वेक का आया है, तो इट मींस इट इज 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन मैग्नीट्यूड ऑफ 5 क्वेक। अगर 5 रिचर स्केल इंटेंसिटी का आया, तो अगर 6 आ गया तो उसका ना 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर आया है। हाँ, एक नंबर में 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर, मतलब 10 नंबर उसमें इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, तो सेस्मोग्राफ आपको पता ही है, सेस्मोमीटर भी बोलते हैं इसे, used to detect and record earthquakes when the ground shakes, the base moves and the mass stays still। तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के रिलेटिव मूवमेंट उससे ये उसको मेजर करता है। Richter scale is not a machine, it is only a mathematical scale. It is used to measure the size of the earthquake. That's it. Next important news is WOAH approves equine disease free compartment in Meerut। Equine disease कौन सी होती है? Equine disease होती है horse related diseases। So in a significant achievement for India's animal health system and the international trade facilitation, India established and secured global recognition for its first equine disease free compartment। तो ऐसा एक कंपार्टमेंट, जैसे ये आप देख रहे हो, ये ऐसा कंपार्टमेंट इंडिया के अंदर पहला बनाया गया हॉर्सेस के लिए, जो डिजीज फ्री है। मतलब अगर इंडिया के अंदर हॉर्स इवेंट्स हो रहे हैं, स्पोर्टिंग इवेंट्स हो रहे हैं, तो बाहर से हॉर्सेस तभी लाए जाएंगे अगर आपके पास ऐसा कुछ कंपार्टमेंट है जहाँ पर डिजीज फ्री हो, जहाँ पर उनको कोई खतरा ना हो हॉर्सेस को, तो तभी वो यहाँ पर ऐसे इवेंट्स करवाए जाएंगे, अदरवाइज नहीं करवाए जाते। तो ऐसा कंपार्टमेंट इंडिया ने भी बना लिया। अब इसको रिकॉग्नाइज किसने किया है कि ये कंपार्टमेंट वाकई में ही डिजीज फ्री कंपार्टमेंट है? इसको रिकॉग्नाइज करा है WOAH, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। तो पहले तो WOAH की फुल फॉर्म आप नोट डाउन करिए, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। अप्रूव्ड द फैसिलिटी, कहाँ पर बनी है ये डिजीज इक्वीन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट, कहाँ बना है?
तो आप मेरठ में बने हैं, रीमाउंट वेटरिनरी कॉर्प्स, आरवीएस, सेंटर एंड कॉलेज मेरठ, यहाँ पर बनाया गया है। तो अब इससे होगा क्या? It marks a major step toward enabling the international movement of Indian sport horses in compliance with the global biosecurity and animal health standards. इंडिया का, ग्लोबली नहीं, इंडिया का। Therefore, it is a significant milestone for India. कर लिया नोट डाउन? Understanding equine diseases. What is an equine disease? It means related to horses, including donkeys, ponies, mules. So equine diseases are illness that affect horses and similar animals. कौन कौन सी डिजीजेज हो सकती है इनको? ग्लैंडर्स, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है, इक्विन इन्फ्लुएंजा जैसे कफिंग एंड फीवर हॉर्सेज में, अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस, डेडली वायरल डिजीज, स्प्रेड बाय इंसेक्ट्स। बहुत सारी ऐसी डिजीजेज हैं जो हो सकती हैं, और ये जूनोटिक भी होती है इनमें से कई, जो एनिमल्स में ह्यूमंस में भी जा सकती हैं। एनिमल्स टू ह्यूमंस। Why control is important? Some equine diseases are very contagious. ये फैलती बहुत है. A few can even spread to humans also. So zoonotic diseases, they can harm international horse trade, sports, events, tourism. So ये इंडिया के लिए इसलिए important हो गया. India's equine disease free compartment. तो ये मेरठ के अंदर है, ये हमने देख लिया. अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ को देख लो आप एक बार. इट इज एन इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्रूविंग एनिमल हेल्थ वर्ल्ड वाइड. ये कहाँ पर है इसका ऑफिस? सिचुएटेड इन पेरिस. इसको क्या बोलते हैं? ऑफिस इंटरनेशनल डेस्क एपिटूर एपिजोटीज, इसको ऐसा बोलते हैं. ओ आई, क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक फ्रेंच फ्रेज है. ये एक फ्रेंच फ्रेज है. ऑफिस मींस एजेंसी, इंटरनेशनल मींस इन्वॉल्विंग मेनी कंट्रीज, एंड एपिजोटीज मतलब ऑफ एनिमल डिजीज आउटब्रेक्स, इसलिए इसको बोलते हैं. 2014 से इंडिया अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस फ्री है, जो हम डेडली डिजीज देखी थी ना हमने, 2014 से इंडिया को फ्री है. सो दैट इज ऑल इन टूडेज करंट इवेंट्स. थैंक यू.